Hello everyone. I hope you all are doing well and your preparations are also going on a smooth pace. So today we are going to deal with a writer, Dante. And the complete name of Dante is Dante Alighieri. I am digressing a bit. As you all know, we are leading with a lecture series based on British literature from the perspective of NTA UGC NET. So today we are going to deal with an Italian writer. The name is displayed already on the board. It's Dante Alighieri. The lifespan of Dante starts from 1265 to 1321. And there is no need to polish this lifespan of the writer because it's very rare asked in the exam. Rest of the information which I will deliver in the class, that becomes very important from the perspective of exam. So Dante has been called as the father of Italian language. He is called as father of Italian language, all right? There is a famous phrase in Italian language associated with Dante, that is il sommo vita. This phrase is originally in Italian language, and you know the translation of this phrase is asked in the exam. What was the translation of il sommo vita? It is the supreme poet. The supreme poet. So this becomes very important कि il sommo vita जो है इसका English translation क्या है? It is the supreme poet because it's written in Italian language, all right? So this becomes very important, okay? Along with Dante, I mean Dante, Boccaccio and Petrarch. These poets were called as the crown of Italian literature, or sometimes they are called as the three fountains of, very, very important, the three fountains of Italian literature. This fact was asked in the exam, that identify the three writers who are considered as the fountain or the crowns of Italian literature. So all three poets, I mean Dante, Boccaccio and Petrarch, they are called as the crown or the fountain of Italian literature, all right? Next very important fact associated with Dante is that he made the vernacular very famous in English. He made vernacular famous. I mean, he made the Italian language very famous, all right? When Latin was trending. वर्नाकुलर यहाँ पे इटालियन के लिए भी कहा गया है और वर्नाकुलर यहाँ पे इंग्लिश के लिए भी यूज़ हुआ है कि दांते ने जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, वर्नाकुलर तो उस टाइम अंग्रेज़ी ही थी, इंग्लिश ही थी, तो लैटिन से शिफ्ट जो करवाया, आई मीन वर्नाकुलर का जो प्रोमिनेंट स्पेस था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उसका क्रेडिट जो है वो दांते को जाता है। लैटिन को छोड़ के वर्नाकुलर को एस्टैब्लिश किया दांते ने, ऑल राइट? एज यू नो दांते इज मेनली नोन फॉर अ फेमस वर्क, और वहां से क्वेश्चन रहता है, दैट इज द डिवाइन कॉमेडी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द डिवाइन कॉमेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल एज फार एज द योनर ऑफ डिवाइन कॉमेडी इज कंसर्न, वो एग्जाम में पूछा गया है. तो दांते की डिवाइन कॉमेडी का जो योनर है दैट इज एलेग्री, ऑल राइट? ये एलेग्री है. योनर की बात करें तो योनर इज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ राइटर. तो दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है इट इज एन एलेग्री, ऑल राइट? और एलेग्री का मतलब क्या है? एलेग्री इज अ लिटरेरी डिवाइस कंपेराइजेज ऑफ डुअल मीनिंग, जहाँ पे डुअल मीनिंग चलता है. जैसे आपका
जॉन बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है, दैट इज द फेमस एलेगरी इन इंग्लिश लिटरेचर. ऑल राइट. सो डिवाइन कॉमेडी का जो इनिशियल टाइटल था दैट वाज कॉमेडिया. COMEDIA. कॉमेडिया वाज इनिशियल टाइटल ऑफ डिवाइन कॉमेडी. और ओरिजिनल टाइटल एज यू नो इट इज डिवाइन कॉमेडी. अब टाइटल से क्वेश्चन ये बनता है कि डिवाइन कॉमेडी के अंदर, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कॉमेडिया वाज द इनिशियल टाइटल ऑफ दांतेस डिवाइन कॉमेडी. सो क्वेश्चन ये बना हुआ है कि हु एडेड दिस प्रीफिक्स कॉमेडिया. कॉमेडिया को टाइटल के अंदर किसने ऐड किया था? बोकाशियो ने. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बोकाशियो ने डिवाइन कॉमेडी के अंदर डिवाइन को ऐड किया था. ऑल राइट. और बोकाशियो इज ऑल्सो नोन फॉर Boccaccio has written the biography of Dante. Dante की जो बायोग्राफी है वो बोकाशियो ने लिखी है. एंड टाइटल ऑफ बायोग्राफी इज द विटा डाई डांटे. द विटा डाई डांटे. The Vita di Dante is the title of biography written by Boccaccio of Dante. All right. डिवाइन कॉमेडी की बात करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डिवाइन कॉमेडी से एग्जाम में फ्रीक्वेंट आस्क्ड हैं. सो फर्स्ट फैक्ट इज इट वाज रिटन इन वर्नाकुलर. और वर्नाकुलर का नाम क्या था? टस्कन. टस्कन वॉज द वर्नाकुलर लैंग्वेज जिसमें आपकी डिवाइन कॉमेडी लिखी गई है. इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज इन्फर्नो, नेक्स्ट इज परगेटरी एंड लास्ट वन इज पैराडिसो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ट्राइपार्टाइट जो डिवीजन है इसका, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और क्रोनोलॉजिकल सेंस में अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है. फर्स्ट पार्ट इज इन्फर्नो, सेकेंड पार्ट इज परगेटरी एंड थर्ड पार्ट इज पैराडिसो. ऑल राइट. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके डिवाइन कॉमेडी से पूछा जाता है दैट इज इन हाउ मेनी कैंटोज इट इज डिवाइडेड. तो ओरिजिनली इट इज डिवाइडेड इनटू 99 कैंटोज प्लस 1 प्रोलॉग. ऑल राइट. सो टोटल नंबर ऑफ कैंटोज की अगर बात करें विच वॉज अप्रूव्ड, द आंसर इज अप्रूव्ड बाय UGC. सो टोटल नंबर ऑफ कैंटोज इन नटशेल आर 100. ऑल राइट. 100 कैंटोज जो हैं वो टोटल हैं, वो आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट एसोसिएटेड है डिवाइन कॉमेडी के साथ, इट्स रिटन इन टर्जा रीमा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स रिटन इन टर्जा रीमा. टर्जा रीमा पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे. टर्जा रीमा से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिवाइन कॉमेडी की जो राइटिंग टेक्निक है वो क्या है. इट्स रिटन इन टर्जा रीमा. टर्जा रीमा को ईजिएस्ट वे में याद कैसे रखना है? इट इंक्लूड्स इंटरलॉकिंग टर्सेट्स. यानी इसकी जो राइम स्कीम है उससे आपको पता चल जाएगा कि टर्जा रीमा में कौन सा ऑप्शन जो मैच करता है. ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है इसका. फॉर एग्जांपल इसकी राइम स्कीम क्या है? ABA, BCB, CDC, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जब आपको इंटरलॉकिंग का पता चल जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसका जो है वो राइम स्कीम क्या है. राइट. ABA, BCB, CDC, इस तरीके से इसका राइम स्कीम जो है वो बनता है. सो आइडेंटिफिकेशन वाला जो पॉइंट है इस टर्जा रीमा के अंदर वो क्या है? इट इंक्लूड्स इंटरलॉकिंग टर्सेट्स. अब क्वेश्चन ये बनता है कि डिवाइन कॉमेडी के अलावा और कौन से वर्क्स हैं जो टर्जा रीमा को फॉलो करते हैं. ऑल राइट. सो वो जो नेक्स्ट वर्क हैं उनकी बात करेंगे. फर्स्ट इज कंप्लेंट टू हिज लेडी. कंप्लेंट टू हिज लेडी. इट्स रिटन बाय चौसर. द बास्ट एंड द स्टैच्यू. इट्स रिटन बाय ऑर्डन. ये भी टर्जा रीमा के अंदर है.
उसके बाद पीबी शैले के वर्क्स हैं ओड टू वेस्ट विंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओड टू वेस्ट विंड, ये टर्जा रीमा के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें शैले के वर्क्स की तो द प्रोफेसी ऑफ दांते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोफेसी ऑफ दांते, दिस वर्क इज रिटन बाय बायरन, ओड टू वेस्ट विंड शैले का है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनके अंदर टर्जा रीमा का यूज़ फ्रीक्वेंट हुआ है। तो टर्जा रीमा आपको मालूम हो गया कि टर्जा रीमा क्या है। टर्जा रीमा इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मीटर विच फॉलोज इंटरलॉकिंग टर्सेट्स, ऑलराइट। अब हम दांते की डिवाइन कॉमेडी की बाकी फैक्ट्स से डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फैक्ट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज दिस वर्क deals with life after death. लाइफ आफ्टर डेथ की बात करता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है वो किसके साथ डील करती है। इट डील्स विद लाइफ आफ्टर डेथ। और दांते की डिवाइन कॉमेडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट राइटर्स को दांते ने मेंशन करा है। फर्स्ट इज हॉरेस, हॉरेस के बाद ओविड, ओविड के बाद सोक्रेट्स एंड हेराक्लिटस, सोक्रेट्स एंड हेराक्लिटस। These are the few writers mentioned by दांते इन डिवाइन कॉमेडी। और दांते की जो बिलोविड थी उनका नाम क्या था, वो भी एग्जाम में पूछा गया, बिट्राइस या बिट्रीस आप कह सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि दिस वर्क डील्स विद लाइफ आफ्टर डेथ, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिटेल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि दांते इज अ पिलग्रिम। बेसिकली इस वर्क के अंदर दांते जो है वो पिलग्रिम है। और दांते को हेवन में कौन लीड ले जाता है और दांते को हेल में कौन ले जाता है। तो हेवन में कौन ले जाती है, बिट्राइस ले जाती है। बिट्राइस लीड्स दांते टू हेवन। एंड हेल में कौन ले जाता है, वर्जिल, वर्जिल लीड्स टू हेल, VIRGIL। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं रिपीट कर रहा हूं। दांते को हेल में वर्जिल ले जाते हैं और दांते को एज अ पिलग्रिम हेवन में कौन ले जाती है, बिट्राइस ले जाती है। ऑल राइट, सो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट डिटेल एसोसिएटेड विद डिवाइन कॉमेडी। इसी के साथ हम एक और राइटर डील करेंगे। द नेक्स्ट राइटर इज पेट्रियार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्रियार्क, Petrarch is again an Italian writer. There is no need to polish the lifespan. Petrarch is Italian writer. As I already mentioned that Petrarch, Boccaccio और Dante को crown or the three fountains of Italian literature कहा जाता है. So Petrarch is usually celebrated as the father of English humanism. The father of English humanism. Humanism का क्या मतलब है? ह्यूमनिज्म बेसिकली एक मूवमेंट थी और ह्यूमनिज्म के अंदर एज वी ऑल नो दैट अर्लियर जो राइटर्स का फोकस था लिखने का, दैट वाज थियोलॉजी। और धीरे धीरे रेनेसां के बाद क्या हुआ कि थियोलॉजी से राइटर्स ने शिफ्ट किया और वो ह्यूमनिज्म पे शिफ्ट हो गई। ह्यूमनिज्म मीन्स ह्यूमन वैल्यूज़ को बेस बनाया, ह्यूमन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी और क्लासिकल कल्चर्स को फॉलो किया, राइट। सो पेट्रियार्क इज सेलिब्रेटेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिज्म। और पेट्रियार्क जो है ही इज़ मेनली नोन फॉर फ्यू वर्क्स जिसके टाइटल्स आपको मालूम होने चाहिए। फर्स्ट इज सेकंड कैनेंजिया, सेकंड कैनेंजोर, CANONZOIRE, सेकंड कैनेंजोर। एंड नेक्स्ट वर्क इज ट्रम्प्स, TRIUMPHS, राइट। ये टाइटल आपको मालूम होने चाहिए। और मेरे हिसाब से पेट्रियार्क जो है, पेट्रियार्क इज मेनली नोन फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टांजा दैट इज कॉल्ड एज पेट्रियार्कन स्टांजा। और पेट्रियार्कन स्टांजा को हम क्या कहते हैं, इटालियन स्टांजा भी कहते हैं।
राइट। इसकी कॉम्पोजिशन और इसकी जो राइम स्कीम है दैट इज वेरी फ्रीक्वेंट इन द आस्क्ड। सो एज फार एज द कॉम्पोजिशन इज कंसर्न्ड, ऑक्टेव फॉलोड बाय सेस्टेट, यानी यहाँ पे 8 सिलेबल्स जो हैं वो 6 सिलेबल्स को फॉलो करते हैं। देखें राइम स्कीम आपको रटनी पड़ेगी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हम तो लिंग्विस्टिक्स से डील करते नहीं हैं। हमारा मेन सब्जेक्ट जो है इंग्लिश वालों का वो लिटरेचर रहता है एज फार एज आवर एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट इज कंसर्न, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स से 0% क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मगअप करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस कंपोजिशन को आप मगअप करेंगे, ऑल राइट। और इसका राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी, ई एफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? यू हैव टू सिंपली पॉलिश द अब्बा अब्बा, ए डबल बी ए, जिसके बिगिनिंग में अब्बा अब्बा होगा, ए बी बी ए होगा। दैट मीन्स यहाँ पे पैट्रियार्कन स्टांजा की बात की जा रही है, और इसका ही ऑल्टरनेट टाइटल इटालियन स्टांजा है। डोंट गेट कंफ्यूज, पैट्रियार्कन एंड इटालियन इज वन एंड द सेम थिंग। और पैट्रियार्क ने अपने सोनेट्स को डेडिकेट किया है लौरा को, LAURA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे दांते ने बेट्राइस को करा था, इसी तरीके से पैट्रियार्क ने लौरा को अपने जो सोनेट्स हैं वो डेडिकेट करे हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट राइटर्स आज की क्लास में हमने डील करे। आई होप यू गॉट इट। आप रिवाइज करते रहें, पॉलिश करते रहें। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेहनत करें, रिवीजन पे फोकस करें, हम ये सफ़र साथ में चलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जब तक मैं दूसरी क्लास लेके आता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।